अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। करیم بھائی اور میں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، تمہیں میری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں ہندوستان کے مسلمان پاکستان کو طاقتور دیکھنے اور اسلام کے نام کو سر بلند کرنے کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ہماری ایک ایسی خفیہ تنظیم یہاں احمد آباد میں موجود ہے جو اس مقصد کے لیے ہر قسم کا مالی تعاون کرے گی۔ احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے دن نکل آیا تھا۔ کریم بھائی نے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ گاڑی روک لی۔ کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنی دکان نہیں دکھائی، میں اپنے ساتھ تمہیں دکان پر لے جانا بھی نہیں چاہتا۔ تم اگر کبھی آئے بھی تو ایک عام ہندو گاہک دانس وردھنا کے روپ میں آؤ گے۔ ابھی تم بیکانیر جا رہے ہو سکتا ہے وہاں تمہیں 2-3 دن لگ جائیں۔ جب واپس آؤ تو یہاں ریلوے اسٹیشن ہی سے مجھے اس نمبر پر ٹیلی فون کر دینا، میں تمہیں لینے یہاں آ جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ اس نے مجھے ٹیلی فون نمبر لکھ کر دے دیا اور مجھے اتار کر چلا گیا۔ میں اسٹیشن کی عمارت کی طرف چل پڑا۔ معلوم ہوا بیکانیر کو کوئی گاڑی سیدھی نہیں جاتی، جودھ پور سے گاڑی بدلنی پڑتی ہے۔ جودھ پور جانے والی گاڑی کے چلنے میں ابھی گھنٹہ سوا گھنٹہ رہتا تھا۔ یہ وقت میں نے ایک اسٹال پر ہندی اردو انگریزی کے رسالے دیکھتے اور کاؤنٹر پر آ کر چائے پیتے گزار دیا۔ پلیٹ فارم پر کافی رونق تھی۔ یہاں آ کر مجھے پہلی بار اپنی ایک شدید غلطی کا احساس ہوا۔ وہ غلطی یہ تھی کہ میں گجراتی جینی خاندان میں پیدا ہوا تھا اور مجھے گجراتی زبان بالکل نہیں آتی تھی۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ اپنی فرضی کہانی میں اپنے ماں باپ کو گجراتی نہیں بلکہ اتر پردیش کے جین مت کو ماننے والے ہندو ظاہر کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی فاش غلطی تھی کہ میں کہیں بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ بات میں نے اپنے ذہن میں پکی کر لی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ان وقت پر میں نے اپنی خطرناک غلطی درست کر لی۔ جودھ پور جانے والی گاڑی آ گئی۔ یہ پیسنجر قسم کی گاڑی تھی، راجستھان کے دیہاتی مسافروں سے پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ مجھے بھی ایک ڈبے میں تھوڑی سی جگہ مل گئی۔ سفر کافی لمبا تھا اور ریگستانی علاقے کا سفر تھا۔ گاڑی تقریباً ہر اسٹیشن پر رکتی تھی۔ صحرائی میدان شروع ہو گئے تھے، کہیں کہیں سرسبز کھیت کا ٹکڑا نظر آ جاتا تھا۔ سردوہی شہر یا پھر گڑھوار۔ یہاں پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی۔ شام کے وقت ٹرین مارواز پہنچ گئی۔ گجرات کاٹھیاوار کے لوگوں کے مقابلے میں یہاں کے لوگ اونچے لمبے تھے۔ بوڑھوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، داڑیاں درمیان سے مانگ نکال کر اوپر کو باندھی ہوئی تھیں، سر پر بڑے بڑے پگڑ تھے۔ دیہاتی عورتوں نے چاندی کے زیور اور کوہنیوں تک کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ کافی انتظار کے بعد گاڑی راجستھان کے بڑے شہر جودھ پور پہنچی۔ یہاں سے میں نے بیکانیر کے لیے گاڑی بدلی۔ دوسری گاڑی رات کے 10 بجے چلی۔ میں نے جگہ بنا لی تھی، 2-3 گھنٹے سویا رہا۔ آنکھ کھلی تو ناگور کے اسٹیشن پر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ناگور شہر راجستھان کا بڑا مشہور شہر ہے۔ اس شہر نے بڑے عالم فاضل مسلمان شاعر، علماء اور دانشور پیدا کیے ہیں۔ صبح ہو رہی تھی کہ ٹرین بیکانیر پہنچ گئی۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بڑا تھکا دینے والا بلکہ بور کر دینے والا سفر تھا۔ سفر میں 2-1 مسافروں سے باتیں بھی ہوتی رہیں۔ میں نے انہیں اپنا نام داس وردھن ہی بتایا اور کہا کہ بیکانیر میں اپنی ماسی کے ہاں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ بیکانیر ایک بار رونق شہر تھا۔ یہ میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں کافی تاریخی قلعے اور محلات تھے، مگر میرا ٹارگٹ اوتار سوردھن کی مڑی تھی جو بیکانیر شہر سے 8 میل شمال مشرق کی طرف واقع تھی۔ اس جگہ کا نام نندی کندا ہے۔ یہاں سنگ مرمر کی چھتریوں والی کتنی ہی مڑیاں ہیں۔ یہ ایک طرح کا قبرستان ہے جہاں روایت کے مطابق کسی راجا کی چہیتی دشتاؤں کی ہڈیاں دفن ہیں۔ بیکانیر کے اسٹیشن میں سے سیدھا ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں گیا، ایک کمرہ کرائے پر لے کر غسل کیا، ناشتہ کیا اور پھر ایک ٹیکسی لے کر نندی کنڈ کی چھتریوں والی مڑیوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ صحرائی تھا اور ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں میں سے ہو کر جانا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو راستہ اور منزل معلوم تھی۔ 8 میل کا فاصلہ 1 گھنٹے میں ہی طے ہوا۔ میں سنگ مرمر کی مڑیوں میں پہنچ گیا۔ ٹیکسی میں نے اپنے پاس ہی رکھی۔ ایک جگہ چھوٹا سا جین مندر بنا ہوا تھا، یہی اس گیانی پنڈت کا گھر تھا جس سے میں جین مت کا اہم ترین نشان 4 گھانٹوں والا منگر سوتر لینے آیا تھا۔ جینی پنڈت ایک کوٹھڑی میں اوتار سوردھن کی مڑی کے قریب بیٹھے تھے، 2 ملازم ان کی خدمت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے بڑی بے نیازی سے کہا، تم ابھی نوجوان ہو،
पहले जैन धर्म का पूरा ज्ञान हासिल करो, तब मेरे पास मंगल सूत्र लेने आना। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बचपन ही से जैन मत का परिस्तार हूँ, खुद भी जैनी माता का बेटा हूँ। आप मेरा इम्तिहान ले लें, अगर कामयाब हो गया तो मंगल सूत्र दे दीजिएगा। पंडित ने सफ़ेद रुमाल सर पर बांध रखा था, वो सफ़ेद लिबास में था। कहने लगा, तुम किस लिए मंगल सूत्र की ख्वाहिश कर रहे हो? मैंने सब कुछ पहले ही से तय कर रखा था कि मुझे इस पंडित के इस किस्म के सवालात के क्या जवाब देने हैं। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं अनाथ हूँ, मैं ब्रह्मचारी भी हूँ, मैं अपना जीवन जैन मत के प्रचार में गुजार देना चाहता हूँ। इस संसार का मुझे कोई लालच नहीं है। पंडित ने मुझे गौर से देखा और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर मंगल सूत्र हम उसी को देते हैं जो जैन धर्म का वरदान होता है। तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैं तैयार हूँ गुरुजी। पंडित मुझसे जैन मत के बारे में बहुत ही इब्तदाई मालूमात के मुतालिक पूछता रहा। मैंने जैन धर्म की सारी तारीख पढ़ रखी थी, हर सवाल का जवाब देता गया। आखिर में पंडित ने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब एक आम जैनी शायद नहीं दे सकता था। उसने मुझसे पूछा, यह बताओ कि जैन मत और बुद्ध मत में क्या फ़र्क है? अगर गौतम बुद्ध और महावीर वर्धन की ज़िंदगी के हालात और तालीमात को देखा जाए तो इन दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। दोनों राजकुमार थे, दोनों जवानी में राजमहल छोड़कर नरवान की तलाश में जंगलों में निकल गया। दोनों ने मोहब्बत और रहम का प्रचार किया। दोनों अवगुण के कायल थे, दोनों जात पात की तकसीम के खिलाफ थे, दोनों मूर्तियों की पूजा के खिलाफ थे। मगर इन दोनों की तालीमात में एक बड़ा बारीक मगर बड़ा बुनियादी फ़र्क यह था कि गौतम बुद्ध इस बात का कायल था कि इंसान भूखा रहकर अपना जिस्म को तकलीफ पहुंचाकर टार्चर करके निर्वाण हासिल नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि इंसान ग़िज़ा भी खाए और जिस्म को तकलीफ ना पहुंचाए और फाका कशी न करे। जबकि जैन मत का बानी बहादुर कहता है कि सिर्फ फाका कशी और जिस्म को टॉर्चर करने से ही निर्वाण मिल सकता है। यह जैन मत के बुनियादी अकीदे में शामिल है। चुनांचे जैन धर्म के मानने वालों में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो खाना पीना बंद कर देता है और फाके की वजह से एक रोज़ खामोशी से मर जाता है। जैनी उसे निर्वाण और निजात की मौत कहते हैं। जब मैंने पूरी तफसील के साथ पंडित को जैन मत और बुद्ध मत का बुनियादी फ़र्क समझाया तो वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, धन हो, तुम बाकी जैनी धर्म के वरदान हो। मैं अपने हाथ से तुम्हें जैनी मंगल सूत्र पहनाऊंगा। उसने संदूक में से केसरी रंग का मंगल सूत्र निकाला। ये 10-12 धागों को जोड़कर उन्हें बट देकर हट्टी की तरह बनाया हुआ था। उसमें यकसा फासले पर 4 गांठें थीं। पंडित ने मेरे बाएं हाथ की कलाई में मंगल सूत्र बांधा और बोला, अब तुम्हें 100 रुपये की दक्षिणा देनी होगी। मैंने उसी वक्त 100 रुपये का नोट निकाल कर पंडित को दे दिया। नोट अपनी वास्कट की जेब में डालते हुए बोला, मगर अभी एक रस्म बाकी है। वो क्या? वो भी बता दीजिए गुरुदेव। पंडित कहने लगा, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि इतनी छोटी उम्र में मंगल सूत्र हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हें उतार संवर्धन की मुड़ी पर एक रात बैठकर हरिओम का जाप करना होगा। तुम 1,00,000 मरतबा हरिओम का जाप करोगे। रात के पिछले पैर जब तुम 1,00,000 मरतबा हरिओम का जाप कर चुकोगे तो संवर्धन अवतार की मुड़ी के सरहाने वाले सुराख में से सफ़ेद रोशनी निकलेगी। फिर यह रोशनी सुर्ख हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि उतार संवर्धन है तुम्हारा मंगल सूत्र स्वीकार कर लिया है। अगर रोशनी सुर्ख ना हुई और सफ़ेद ही रही और थोड़ी देर बाद गायब हो गई तो इसका मतलब होगा कि अवतार संवर्धन ने तुम्हारे मंगल सूत्र को कबूल नहीं किया। फिर तुम्हें यह मंगल सूत्र मुझे वापस करना होगा। अगर तुमने मंगल सूत्र मुझे वापस न किया और भाग गए तो तुम 1,84,000 मरतबा चूहे की शक्ल में जन्म लोगे और तुम्हें कभी निर्वाण न मिल सकेगा। मैं समझ गया कि पंडित ने यह मेज़ पैसा कमाने का ढकोसला बनाया हुआ है, क्योंकि उसने मुझे यह भी कहा था कि अगर रोशनी सुर्ख हो गई तो तुम मज़ीद 200 रुपये रोशनी वाले सुराख में डालोगे। यह तुम्हारी दक्षिणा होगी। मैंने कहा, मैं इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ गुरुदेव। मुझे इस इम्तिहान के लिए संवर्धन उतार की मुड़ी पर किस वक्त जाना होगा? पंडित ने बताया कि रात जब आधी गुजर जाएगी तब मैं उतार संवर्धन की मुड़ी पर जाकर बैठ जाऊंगा और 1,00,000 मरतबा हरिओम का जाप करूंगा। यह पंडित भी जानता था कि कोई इंसान इतने थोड़े वक्त में 1,00,000 बार हरिओम का जाप नहीं कर सकता, मगर उसने ये फराड ऐसे ही चला रखा था। मैंने कहा,
मैं आज ही आधी रात को मुड़ी पर बैठ जाऊंगा। मैंने पंडित से इजाज़त लिया और टैक्सी में बैठकर अपने होटल में आ गया। दोपहर को होटल में खाना खाया और यूं ही बीकानेर शहर की सैर करने निकल पड़ा। यहाँ गर्मी बहुत थी। बाजारों में किस्म किस्म की चीज़ें बिक रही थीं। कई गैर मुल्की सियाह बाजार में घूम रहे थे। मुझे एक बाजार के कोने पर एक मस्जिद का गुंबद और मीनार नजर आया। दिल पर एकदम खुशी की कैफियत तारी हो गई। मैंने सोचा कि अभी तक मैं हिंदू बनकर कुफर बक रहा था। मेरे लिए अब लाजम है कि इस मस्जिद में जाऊं, और अगर 2 नफल नहीं पढ़ सकता तो मस्जिद के इमाम साहब से यूं ही 2-4 बातें कर लूं। चुनाचे मैं मस्जिद में आ गया। छोटी सी मस्जिद थी। इमाम साहब बूढ़े आदमी थे। सहन में एक तरफ मेहराब पर चढ़ी हुई बैल की छांव में बैठे कोई किताब घुटनों पर रखे पढ़ रहे थे। मेरे माथे पर तिलक लगा था। मेरा पहनावा भी हिंदू जैसा था, इसलिए मस्जिद के अंदर सहन में न गया, वहीं खड़ा रहा। इमाम साहब की निगाह मुझ पर पड़ी तो दूर ही से पूछा, क्या बात है भैया, तुम शक्ल सूरत से मुसलमान नहीं लगते, यहाँ कैसे आए हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, मंदिर मस्जिद को मैं भगवान का घर ही समझता हूँ। बस इधर से गुजरा तो मन में ख्याल आया कि भगवान के घर को प्रणाम करता चलूँ। इमाम साहब जरा सा मुस्कुराए। उन्होंने मुझे मस्जिद में आने के लिए बिल्कुल न कहा। बस इतना कहकर मुताले में मशगूल हो गए। अच्छा अच्छा। मैंने मस्जिद के महराब पर लिखे हुए कलमा शरीफ को 2-3 बार दिल में पढ़ा। खुदा से अपने कुफर की बातों की माफ़ी मांगी और इमाम साहब को हाथ जोड़कर प्रणाम करके वापस चल दिया। मस्जिद के दरवाजे से निकलकर मैं अपने होटल की तरफ चलने लगा। सोचा थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, सारी रात जागना है। मुझे कुछ ऐसे लगा था कि जब मैं मस्जिद से निकला था तो बाजार की दूसरी तरफ दुकान के बाहर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसने मुझे घूर कर देखा था। और जब मैं बाजार से चलने लगा तो वो भी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ था। मैं चलते चलते मोहतात हो गया। आखिर मैं ना तो हिंदू था और ना कोई आम मुसलमान शहरी था। मैं दुश्मन मुल्क में कमांडो सिपाही की हैसियत से एक इंतहाई अहम मिशन पर आया हुआ था। इस आदमी की धुंधली सी शक्ल मैंने देख ली थी। मैं बाजार बड़ी बेनियाजी से बाजार में से एक तरफ होकर चल रहा था, लेकिन मेरी छठी बल्कि 7वीं हिस्स भी बेदार हो चुकी थी। यह सोचकर एक लम्हे के लिए मैं वाकई परेशान हो गया कि मेरे पास सेंट्रल सीक्रेट पुलिस के खुफिया नंबर वाला कार्ड नहीं था। वो मैं करीम भाई के तहखाने की अलमारी में ही दूसरी चीज़ों के साथ छोड़ आया था। चलते चलते मैं रुक गया। मैं तस्दीक करना चाहता था कि जिस शख्स को मैंने कुर्सी पर से उठते हुए देखा था वो मेरा ताक़ुब कर रहा है या नहीं। मैं रुक कर दुकानों के बोर्ड पढ़ने लगा। यह ज़ाहिर किया जैसे मुझे किसी खास दुकान की तलाश है। फिर अपनी निगाहें दुकानों के बाहर लगे बोर्डों पर डालते हुए मैंने गर्दन घुमाकर पीछे निगाह डाली। बाजार में कोई रश बिल्कुल नहीं था। मैंने देखा कि जो आदमी मुझे मस्जिद से बाहर निकलते देखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था वो मुझसे कोई 15-20 कदमों के फासले पर एक दुकान के बाहर खड़ा दुकानदार से बातें कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसने भी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर दुकानदार से बातें करने लगा। यह बात साबित हो गई थी कि यह शख्स खुफिया पुलिस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरा पीछा करने में हक बजानिब था, क्योंकि मेरा हुलिया हिंदू वाला था और मैं मस्जिद से निकला था। इस बात पर उसे शक हुआ होगा। अगर मैं हिंदू हूँ तो मस्जिद में क्या लेने गया था? अगर मुसलमान हूँ तो मैंने हिंदू वाला हुलिया क्यों बना रखा है? यह पाकिस्तान का सरहदी शहर था। बीकानेर से आगे मगरब की जानिब बॉर्डर का सहरा था। यहाँ बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी। चुनाचे वो ये मालूम करने के लिए मेरा खामोशी से पीछा करने लगा था कि असल में मैं कौन हूँ, कहीं पाकिस्तान का कोई जासूस तो नहीं हूँ। वो वहीं मुझे रोककर मुझसे पूछगछ शुरू कर सकता था, मुझे थाने भी ले जा सकता था। मैं इंडिया के बॉर्डर शहर में था और सिक्योरिटी यहाँ सख्त थी और पुलिस की इंटेलिजेंस को बड़े इख्तियारात हासिल थे। अगर इस शख्स ने मुझ पर हाथ नहीं डाला था तो इसकी वजह महज यह थी कि वो ये मालूम करना चाहता था कि मैं किसके पास ठहरा हुआ हूँ और मेरे साथ और कौन कौन है। ये मेरी सोच थी। अब मेरा जहन भी अलर्ट हो गया था। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने होटल ना जाऊँ और खुफिया पुलिस वाले को जल देकर किसी तरफ गायब हो जाऊँ और आधी रात तक वहीं बैठा रहूँ। इसके बाद टैक्सी लेकर छतरियों वाली बूढ़ी की तरफ चलूँ। फिर सोचा कि ऐसा करने से खुफिया पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा कि मैं वाकई पाकिस्तानी जासूस हूँ। होटल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं होटल में आ गया। यहाँ मैंने अपना नाम दास वर्धानी लिखवाया था।
और ये भी लिखवाया था कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और यहाँ उतार संवर्धन की मुड़ी की यात्रा करने आया हूँ। मैंने होटल में दाखिल होते हुए देख लिया था कि वो शख्स बराबर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उस वक्त मुझे सिगरेट पुलिस के जादू असर नंबर वाला खुफिया कार्ड बहुत याद आया। अगर वो मेरे पास होता तो इस इंटेलिजेंस के आदमी से एक सेकंड में निजात हासिल कर सकता था। हकीकत यह है कि मेरा मिशन इतना बड़ा था कि ये छोटी छोटी बातें मैं खातर में नहीं लाना चाहता था, लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी परेशानियाँ और किसी मामूली सीआईडी के आदमी की पूछ-गुछ से बड़े कमांडो सिपाही के बड़े से बड़े मिशन को खाक में मिला देती है। मुझे बीकानेर के इस मामूली से खुफिया पुलिस अफसर से उलझन होने लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। शाम को मैंने खाना भी अपने कमरे में ही मंगवाया। इसी दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या न हुआ। मैं एक तरबियत याफ्ता तजर्बाकार कमांडो था। मैं इस खुशफहमी में कभी मुब्तला नहीं हो सकता था कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरी जान छोड़कर चला गया है। ये लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करते, ख़ास तौर पर जब उन्हें कोई शक पड़ जाए तो फिर तो ये अगले को हवालात में पहुंचा कर ही दम लेते हैं। बल्कि इस दौरान इस शख्स ने अपने मुतल्लिका अफसरों को भी मेरे बारे में बता दिया होगा कि एक मशकूक आदमी का पीछा कर रहा हूँ। मुझे रात के 12 बजे संगे मरमर की छतरियों वाली मुड़ियों में पहुंचना था। 11 बजे होटल से निकलकर मैंने टैक्सी लिया और नंदी कोंड की तरफ चल पड़ा। यह उस इलाके का नाम था। बीकानेर के रहने वाले हजरात इस नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। टैक्सी में सवार होने से पहले मैंने इर्द गिर्द एक सरसरी से निगाह ज़रूर डाली। मुझे खुफिया पुलिस वाला कहीं नज़र नहीं आया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो वहाँ मौजूद है और मेरे पीछे आएगा। बहरहाल मुझे अपना काम हर हालत में पूरा करना था। मैं वक्त से आधा घंटा पहले पंडित जी के आश्रम में पहुंच गया। मैं इस छोटी सी कोठरी को आश्रम ही कहूँगा। पंडित जी ने मुझे खाली हाथ आते देखा तो नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, अवतार संवर्धन के चेलों के लिए कुछ नहीं लाया। मैंने पशमान होने की अदाकारी करते हुए कहा, गुरु जी गलती हो गई, यह बहुत ज़रूरी था। अच्छा तुम ऐसा करो, 100 रुपया भंडार खाने में जमा करा दो, मुझे दे दो, मैं खुद सब में बांट दूंगा। मैंने मजीद 100 रुपये का नोट पंडित जी के हवाले कर दिया। पंडित जी ने मुझे अपने करीब बिठा लिया और कहने लगे, अवतार संवर्धन की मुड़ी के इर्द गिर्द राजा की दस्ताओं की मुड़ियाँ हैं। हमारे गुरु जी कहा करते थे, उन दस्ताओं की रूहें लोमड़ियाँ बनकर रात को बैन करती हैं, उनसे डरना मत। कुछ दस्ताओं की बदरूहें खूबसूरत औरतों का रूप बदल कर बरहन्ना होकर अचानक सामने आ जाती हैं। उनके फरेब में मत आना और ध्यान लगाकर हरिओम का जाप जारी रखना। भगवान महावीर से मेरी प्रार्थना है कि वो तुम्हारा मंगलसूत्र कबूल कर ले। बस अब वक्त हो गया है, जाओ और मुड़ी पर बैठकर जाप शुरू कर दो। मैंने तुम्हें मुड़ी दिखा दी हुई है। मैं अवतार संवर्धन की मुड़ी पर जाकर बैठ गया।